It always seems impossible until it's done. This line is said by Nelson Mandela. Hello everybody, welcome to my channel The Inspiring Eye, and in today's video we are going to read a new story. And the name of the story is A Long Walk for Freedom. Now, this chapter is actually an extract from the autobiography of Nelson Mandela. So let's start. Let's see what's the first para is saying. 10th May, dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Now, before I explain the first para, there are few words which are actually new in terms, so I will let you know the meaning of those words. Like besieged means to surrounded by, like the bride was besieged by so many people. That means the bride was surrounded by so many people, right? Now there is another word called dignitaries. Dignitaries means high officer rank. Like for example, someone is an IAS officer, okay, IPS officer, or you can say block education officer. So they are high dignitaries, like they are dignitaries, they are high officer rank people, okay. And there is another word called amphitheatre. Amphitheatre means an open air theatre. All right, and now there is another word called supremacy. Supremacy means condition of being superior to all others in authority, in power or status. जैसे आपके क्लास में कोई एक मॉनिटर तो होते ही होंगे, और कभी कुछ क्लास में प्रॉब्लम हुई तो यू विल सी दैट योर टीचर इज कॉलिंग द मॉनिटर कि टेल मी व्हाट हैड हैपन, ओके, एंड योर मॉनिटर इज गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि मतलब ऐसा हुआ, इसने पुश बैक किया फर्स्ट, उसके बाद इसने रिएक्ट किया, राइट. तो ये क्या हो गया बेटा, उसका पावर, उसका ऑथोरिटी जो है वो आपसे अलग है. तो दैट इज व्हाट सुप्रीमेसी, सुप्रीम, जिसे हम लोग कहते हैं ना गॉड इज द सुप्रीम पावर, है ना, तो वही होता है सुप्रीमेसी. ठीक है. अच्छा, अब इस स्टोरी में राइटर जो है वो कहते हैं कि 10th मई का दिन था, 10 मई थे, और नेल्सन मंडेला जो थे वो मतलब शपथ ग्रहण कर रहे थे. ही वॉज टेकिंग ओथ फॉर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका. ठीक है. एंड राइटर कहते हैं कि ये बिल्कुल आसान नहीं था. इट वॉजेंट ईजी, इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल. हमारी पार्टी आज जो पावर में आई है, एंटी रेसिस्ट पार्टी, इट वॉजेंट ईजी. बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हमें, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके आज हमारी पार्टी ने मतलब अपना एक मुकाम हासिल किया है, उन्होंने एक पोजीशन जीता है. ठीक है. एंड राइटर कहते हैं कि इससे पहले जितने भी लोग प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका में, सब वाइट फेस पीपल थे. ठीक है. मतलब कि वाइट प्रेसिडेंट थे, गोरे लोग हमेशा यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते थे. ठीक है. और राइटर कहते हैं कि इसीलिए मैं आज का दिन को ब्राइट एंड क्लियर कह रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ये पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बनेगा. ठीक है. तो इसलिए राइटर ब्राइट एंड क्लियर मॉर्निंग भी कहते हैं, और साथ में कहते हैं कि ये जो मॉर्निंग है ना, ये फुल ऑफ होप है. इट वॉज अ मॉर्निंग विच इज़ फुल ऑफ होप. Okay, and day before this date, many notable personalities started congratulating me for the victory. They started saying congratulations, finally. मतलब राइटर कहते हैं कि इससे पहले वाले दिन, that means 9th में ले लो, उस दिन सभी मुझे फ़ोन करके सभी लोग मुझे वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कह रहे थे कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए, ये वो बड़े बड़े दिग्गज मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे. ठीक है. और साथ साथ में वो भी कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हिस्ट्री सो मैनी इंटरनेशनल लीडर केम टुगेदर. राइटर कहते हैं कि ऐसा साउथ अफ्रीका में पहले कभी नहीं हुआ. ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंटरनेशनल लीडर्स भी आ रहे हैं इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने.
ठीक है। और बहुत क्लियरली राइटर कहते हैं कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन एन ओपन सर्कुलर बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया सिटी। ठीक है, ये था फर्स्ट पैरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड पैरा की तरफ, तो चले। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter, Zanani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. Now, deputy is second in command. Sworn in means giving under oath, given under oath, or you can also say कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश के प्रति हमेशा, तो that's what actually किसी का कसम खाना, मतलब अपने देश के प्रति मेरे दिल में हमेशा प्रेम रहेगा, मैं अपने देश को सबसे आगे रखूँगा, इस तरह को हम लोग sworn in कहते हैं, मतलब शपथ लेना कहते हैं। अच्छा, pledge means committed by a promise, you can also say। तो यहाँ पर the author is saying कि I was being accompanied by my daughter, and on not only this, the author is also saying कि before me the two vice presidents took an oath, right? So beautifully author was saying कि my daughter was present on this big day and two other vice president had already taken the oath, and now my turn, it was my turn. And he said, I said that he will be committed and he will be giving respect and protect and abide by the constitution and to devote his entire self into welfare of the country. तो राइटर कहते हैं कि इस बड़े से अवसर पर मैं अकेला स्टेज पर उस पोडियम पर नहीं खड़ा था, मेरे साथ मेरी बेटी भी थी। और साथ ही साथ राइटर कहते हैं कि मेरे ओथ लेने के पहले, मतलब मेरे शपथ ग्रहण करने के पहले दो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऑलरेडी शपथ ग्रहण कर लिया था, अब मेरी बारी थी, जहां मैंने शपथ ग्रहण करते टाइम पर ये शपथ लिया कि मैं सबको आदर सत्कार दूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल बी लाइक अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई विल बी डिवोटिंग माई सेल्फ, मैं पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर दूंगा इस समाज को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, मैं इस समाज को अच्छा बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जी जान से मेहनत करूंगा। ठीक है, ये था आपका सेकंड पैरा। अब हम आगे बढ़ते थर्ड पैरा की तरफ, उससे पहले आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। To the assembled guest and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws and not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अच्छा, अब क्या है कि अब राइटर बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे उनको फाइनली अपने ही मिट्टी पर उनको उनका हक मिल रहा है। असेंबल्ड का मतलब होता है गैदर्ड, कन्फर मतलब होता है ग्रांट, ग्लोरी मतलब होता है ऑनर। अच्छा, आउटलॉज मतलब होता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड पोजेशन मतलब तो आपको पता ही है, ओनरशिप, डिग्निटी, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा, ये जो वर्ड था आउटलॉज, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि
किसी भी कंट्री में ना अगर आप नोटिस करोगे ना कि भेदभाव हो रहा है या प्रोटेस्ट हो रहा है, बेसिकली भेदभाव छोड़ो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो देखना कि जो आपके साइड कंट्रीज है ना, स्लोली एंड स्टेडीली वो क्या होंगे, वो आपसे कट ऑफ होने लग जाएंगे, वो आपसे दूरी बनाना लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट का गलत प्रभाव उनके देश में पड़े। ठीक है, तो यहाँ साउथ अफ्रीका के साथ भी सेम चीज हुई थी। हम लोग समझते हैं कैसे। Author also mentioned some part of his speech where he said that everyone by his presence was giving rise to hope for a new beginning. Writer अपने स्पीच में बहुत सुंदरता से कहते हैं कि सब मेंशन करते हुए कहते हैं अपने स्पीच में कि आज मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, सारे लोग बाहर से आए हैं, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ मौजूद हैं, और मतलब वो इसी उम्मीद से आए हैं कि यहाँ एक नई शुरुआत होगी। अब previous rulers were discriminatory and lasted for long, but the one who are given the opportunity to rule now would stand up against the discrimination. अब स्पीच में ये लाइन भी वो मेंशन करते हैं कि मेरे आने से पहले इस सॉइल पे, इस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे जो भी रूलर था वो डिस्क्रिमिनेटरी था, वो डिस्क्रिमिनेट करता था, वो भेदभाव करता था, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स को लेकर के वो डिस्क्रिमिनेट करता था। लेकिन आज इस पब्लिक, इस जनता ने जिसे चुना है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, वो डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करेगा, ना ही वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोत्साहित करेगा, मतलब ना ही उसे बढ़ाएगा कि हाँ करो, डिस्क्रिमिनेशन करो, करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, राइटर कहते हैं कि ही इज ग्लैड टू होस्ट अ सेरेमनी विद द प्रेजेंस ऑफ ग्लोबल लीडर्स, इट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। कहते हैं कि मैं आज बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूं, किस चीज को लेकर के, मैं आज इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस इनॉग्रेशन में, इस शपथ ग्रहण समारोह में ग्लोबल लीडर्स भी आए हैं, बाहर के देशों से भी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, मेरे सामने खड़े हैं। इट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, ये बहुत बड़ा ही अपने में अचीवमेंट है। There was a time when South African for practicing apartheid lost all international political relationship. And now, when there is no segregation on the basis of race, gender, other nations are happy to have a healthy democratic relationship. राइटर बहुत ही ब्यूटीफुली कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब साउथ अफ्रीकन को सारे लोगों ने साइड कर दिया था, मतलब कि सारे लोग कट ऑफ होते जा रहे थे, उनको मतलब इम्पोर्टेंस साउथ अफ्रीका को उतना नहीं मिल रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो उस समय जो रूलर थे वो एपार्थाइड सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन और वो ये भी कहते हैं कि इस चक्कर में लॉस्ट ऑल द इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इसी चक्कर में पूरा जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप था साउथ अफ्रीका ने खो दिया था। लेकिन आज सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंज्ड। अब कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड जेंडर। ठीक है, एंड अदर नेशंस आर हैप्पी टू हैव अ हेल्दी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप, राइट। और नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं यहाँ पर कि अब जो बाकी के जो देश है ना, वो अब हमारे साथ हेल्दी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप में रहेंगे, मतलब वो कहना चाहते हैं कि अब हमारा देश भी इन डिस्क्रिमिनेशन से मतलब एकदम कट ऑफ हो जाएगा, वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वो सबको बराबरी की नजर से देखेगा। और साथ ही साथ राइटर ये बोलते हैं कि इसी के चक्कर में वापस से अब हमारा एक हेल्दी डेमोक्रेटिक पब्लिक रिलेशनशिप बनेगा। किसके साथ बनेगा? बाकी देश के लोगों के साथ, जिन लोगों ने पहले साउथ अफ्रीका को साइड कर दिया था। राइटर एट द एंड ये कहते हैं कि फाइनली दे हैव कम टू पावर एंड दे प्लेज टू मेक एवरीवन प्राउड। राइटर कहते हैं कि फाइनली अब पावर सही इंसान के हाथ में गई है, एंड आई एम गोइंग टू मेक एवरीवन प्राउड। ही इज टेकिंग दिस ओथ, प्लेज कर रहे हैं वो। He thanked everyone, especially the international leader, for joining them in celebrating their achievement, which is a step towards an equal society where every human beings will be treated fairly. है ना? अगर आप पैरा का लास्ट देखोगे लाइन, जहां पर बहुत ही ब्यूटीफुली राइटर कहते हैं कि we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people. ये लाइन देखो, इसमें राइटर बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं कि मैं दहे दिल से
ग्लोबल लीडर्स का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंटरनेशनल लीडर का, जो आज इस सेलिब्रेशन में मेरे साथ मौजूद है। ये अपने में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है। आज हम एक स्टेप और क्लोज आ रहे हैं, किस चीज के लिए? इक्वल सोसाइटी, समाज में एकता बढ़ाने के लिए, समाज को यह एहसास दिलाने के लिए कि हर मनुष्य को बराबर हक मिलना चाहिए। उसके लिए आज हम एक स्टेप और नजदीक आ रहे हैं कि वेयर एवरी ह्यूमन बीइंग विल बी ट्रीटेड फेयरली, जहां पर हर एक इंसान को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय एवरीबॉडी।